So, good morning and welcome to this online lecture of mechatronics. We are in unit number 4. In the last lecture, we have seen the introduction of microprocessor, where we have seen the evolution of microprocessor, how the microprocessor evolved from late 60s up till now, uh, in terms of processing speed, in terms of the data, in terms of the size of the data it can handle. Like in early days, there were 4-bit microprocessor. Then comes 8-bit microprocessor. Then 16-bit, 32-bit, and nowadays you will find 64-bit microprocessor. That means a microprocessor can handle as long as 16-bit data in one cycle. And according to the speed of the processing, also microprocessor has come up a long way, right from a few megahertz to now some gigahertz. Okay, so this speed of the microprocessor indicates that what amount of cycles it can process in 1 second. Like in one cycle, it can take 64 bit data, and like that, it can process 64 what you can say some GB data in 1 second. So 1 GB is about one billion. Okay, 1 billion uh, data it can process in 1 second. So you can imagine the amount of speed these high-end processors now can process. Okay, so uh, we have seen that microprocessor is basically processing device. Like it is connected to input device where it takes the data, processes it, and it gives the instructions to the output devices. And output devices, according to the instructions from the microprocessor, it does the execution. Okay. So the microprocessor is a processing device. Now, where this microprocessor is placed. Okay, so where is the exact position of microprocessor? You might have seen the motherboard of a computer. Okay, so every desktop computers has got a CPU, and inside that CPU there is a motherboard. Okay, so on this motherboard, this is the motherboard. So in that motherboard, you will find a square chip. Okay? You will find a square chip with pins on all the sides of this square. So pins on all sides of this square. So this is microprocessor. Okay, and there is one fan. One fan is there which takes all the amount of heat generated in that microprocessor, and it dissipates the heat continuously from the microprocessor, because microprocessor is it is called a brain of a computer. Okay, all the arithmetic and logical operations are performed in this microprocessor, and a lot of processing is done in the microprocessor, and a lot of heat, because of that a lot of heat is generated. So this is a very hot area, you can say, and to take out all the heat, one fan is provided. So this is the position of a microprocessor. Okay, uh, now, in our syllabus, we have microprocessor 8085. Okay, so 8085 microprocessor is there in your syllabus. Now, you may ask that why we are learning 8085 microprocessor, which is a 8-bit microprocessor. This 8085 is a 8-bit microprocessor. That means the size of the data it can handle in one cycle is 8-bit only, whereas in commercial market you will find the microprocessor of 32-bit and 64-bit. So you may ask a question, why we are learning a 8-bit microprocessor uh, when there is 64-bit microprocessor is available in the market.
what is the use of learning 8-bit microprocessor, which is not going to use anywhere nowadays. So you may ask this kind of a question, why we are learning this 8-bit microprocessor. Now, the justified answer for this question is, though it is a 8-bit microprocessor, the basic architecture of this 8085 processor remains same for all the advanced microprocessors. Only the amount of data it can handle is increased, but the basic architecture of any microprocessor, of any modern microprocessor, is remains the same. ये जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में जो ब्लॉक्स है, this is a block diagram. Okay, आर्किटेक्चर बोला तो this is the block diagram. ब्लॉक डायग्राम बोला तो उसके अंदर में कौन से वर्किंग कंपोनेंट्स है. तो ये जो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जितने भी वर्किंग कंपोनेंट्स है, ये वर्किंग कंपोनेंट्स सारे मॉडर्न जितने भी माइक्रोप्रोसेसर्स है उसमें भी यही वर्किंग कंपोनेंट्स है, सिर्फ उनकी स्पीड ज्यादा है, उनका डेटा कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है. ओके, ये एक साथ 8 बिट कैरी करता है, वो एक साथ 64 बिट कैरी करता है, बट जो वर्किंग ब्लॉक्स है वो सेम है. जैसे कि इसका अगर एक एग्जांपल देते बोले कि एक आपको बिल्डिंग बनाना है, वो बिल्डिंग चाहे एक मिडिल क्लास आदमी का बिल्डिंग बनाना हो या मुकेश अंबानी का एंटीलिया बनाना हो, जो प्रोसेस लगती है वो सेम है. ओके, पहले पाइलिंग किया जाता है, यानी पहले गड्ढे खोदे जाते हैं, फिर गड्ढे खोदने के बाद उसमें फुटिंग करके पिलर्स खड़े किए जाते हैं, उसके बाद फिर उसका पिलर्स का कंक्रीट उसमें भरा जाता है, फिर उसके बाद प्लिंथ बनाया जाता है, वो प्लिंथ के बाद फिर स्लैब दिया जाता है, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क का काम होता है और उसकी दीवारें खड़ी की जाती है. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक मिडिल क्लास आदमी का जो घर बन रहा है उसकी भी वही रहती है, और एंटीलिया जो है मुकेश अंबानी का जो घर है उसकी भी वही रहती है. सिर्फ इतना है कि वहाँ पे मॉडर्न मशीनरी यूज होती है, वहाँ एक साथ हजारों वर्कर काम करते हैं, यहाँ पे एक साथ जो है 7-8 वर्कर काम करते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रोसेस है वो सेम है. तो अगर आपको एंटीलिया भी बनाना है तो भी आपको जो बेसिक घर बनाने का जो जैसा पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाना होता है, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाना होता है, और ये जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है ये सेम है. ये चाहे आप छोटा घर बना रहे हो या बड़ा घर बना रहे हो, प्रोसेस जो है वो सेम है. ओके, तो उसी तरह से ये भी वैसे ही है. 8085 का आर्किटेक्चर, ये जो बेसिक आर्किटेक्चर है, अगर आपने ये आर्किटेक्चर इसका फंक्शनिंग समझ लिया तो आपको कोई भी मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर का जो फंक्शनिंग है वो समझ में आता है. तो इसलिए ये जो है, ये जो सबसे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है. ओके, तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि व्हाई वी आर लर्निंग 8085, या फिर आपका कोई जान पहचान वाला पूछता है कि आप कौन सा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो, और आपने बोला कि 8085 पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि वो ये पूछे कि भाई 8085 क्यों पढ़ रहे हो, 8085 अभी पढ़ने का क्या रेलेवेंस है. तो रेलेवेंस आपको ये बताना है कि इसका जो आर्किटेक्चर है ये सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है. ओके, और एक एग्जांपल देना बोले तो अभी जैसे जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, आप कंप्यूटर में कैड मॉडल्स बनाते हो, तो कैड मॉडल बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है और काफी एडवांस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है. लेकिन आज भी अगर जो बेसिक कैड मतलब जो ऑटो कैड वाला जो जो सॉफ्टवेयर है वो अगर आपको आ जाता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो अगर आपको समझ में आ जाता है ऑटो कैड का, तो बाकी जितने भी कैड मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर है वो सब यही बेसिक्स पे काम करते हैं. सिर्फ उनके टर्मिनोलॉजी कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सट्रूजन यूज करता है तो वहाँ पे कोई दूसरा यूज करते होंगे, कोई दूसरे टर्म्स यूज करते होंगे, तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन बेसिक जो मॉडलिंग बनाने के जो टेक्निक्स है
वायर फ्रेम मॉडल हो गया या कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री टेक्निक हो गया या बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, ये जो बेसिक्स है ये सेम रहता है। आप कितना भी एडवांस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करो, जो बेसिक मॉडल बनाने की जो टेक्निक्स, जो 4-5 टेक्निक्स है, वायर फ्रेम हो गया या कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री हो गया या बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन हो गया या सरफेस मॉडलिंग हो गया, तो ये जो थियोरेटिकल बेस है वो बेस सारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के लिए सेम है। तो इसलिए हम 8085 पढ़ रहे हैं जो कि सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको दुनिया का कोई भी एडवांस प्रोसेसिंग जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आप उसका फंक्शनिंग समझ सकते हैं। So this is something about the 8085 architecture. Architecture बोला तो this is also called as block diagram. That means what are the functional blocks are there in the microprocessor which actually processes the data. अब ये चालू करने के पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें ये जो कुछ एरोज दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एरोज दिख रहे हैं, ये एरोज ये जो लाइन दिख रही है, ये कहीं डबल दिख रही है, कहीं सिंगल दिख रही है, तो ये बेसिकली जो है ये इसको बोलते हैं बसेस, बस सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको इसमें एग्जाम में कि how many types of buses are available in the 8085 architecture. तो बसेस बोला तो जो फंक्शनल ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, यानी जो डेटा है ये एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, प्रोसेसिंग होना क्या है, प्रोसेसिंग होना है एक जैसे जो डायमंड आता है, कभी एनीबॉडी हैव यू सीन अ डायमंड जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम अ माइन? If you see a diamond coming out from the mine, just coming out from a mine, it looks very ordinary. It looks very similar to any ordinary stone. अगर एक हीरा अगर आप माइन में से अगर निकाल के देखते हो तो जिसको समझ में नहीं आता वो तो फेंक देगा, क्योंकि वो एक जैसा कि एक आम स्टोन दिखता है वैसा ही दिखता है। But when that diamond undergoes various processes, then the facets of the diamond is come out and उसका जो क्या बोलते हैं कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो unless and until that diamond doesn't undergo through various processes, उसका कीमत नहीं बढ़ता है। तो इसलिए प्रोसेस करना बोला था, एक मशीन पे जाता है, फिर वो पहले वहां पे उसको धोया जाता है, फिर दूसरे जगह जाता है तो उसको पोंछा जाता है, फिर तीसरी जगह ब्रशिंग होती है, चौथी जगह उसका सरफेस का फिनिशिंग होता है, और ऐसे ऐसे प्रोसेस से वो गुजरता है। तो यहाँ पे भी जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ से जो डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसा ट्रैवल करता है। तो ये ट्रैवल बेसिकली जो है ये तीन तरह के बसेस है जहां से ये डेटा ट्रैवल करता है। ओके, तो उसमें सबसे पहले आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब ये तीन तरह का डेटा जो है ये ट्रैवल करता है माइक्रो प्रोसेसर में। सबसे पहले तो एड्रेस बस आता है, फिर डेटा बस आता है और फिर कंट्रोल बस आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एड्रेस बस क्या है। अब मुझे बताओ कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, प्रोसेसिंग है। सो प्रोसेसिंग यानी क्या है, जैसा एक माइक्रोवेव ओवन ले लिया, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर है वो खुद जो है खुद खाना बनाता है क्या माइक्रो प्रोसेसर? नहीं, उसका काम क्या है, उसका काम कॉइल को हीट करना ये है क्या? उसका काम कॉइल को हीट करना नहीं है। उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि एक प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर है, वो मेमोरी से प्रोग्राम लेने का, जो यूजर है माइक्रोवेव ओवन का उसने टेम्परेचर कितने पे सेट किया है, टाइमर कितने पे सेट किया है,
ओके, माइक्रोवेव ओवन का जो डोर है वो बराबर बंद किया है या नहीं है, ये सारे जो इनपुट डिवाइसेस से लेने का, मेमोरी में प्रोग्राम है, प्रोग्राम को रीड करने का, उसको समझने का, और इनपुट वेरिएबल्स के हिसाब से प्रोसेस करने का, और जो आउटपुट डिवाइसेस है जैसे वहाँ कॉइल होगा या बजर होगा या टाइमर डिस्प्ले हो गया, ये जो आउटपुट डिवाइसेस है इनको फिर वो प्रोग्राम के हिसाब से प्रोसेस करके वो इंस्ट्रक्शंस आउटपुट डिवाइस को देना, ये दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो अब प्रोसेसर का काम क्या है कि प्रोग्राम स्टोर है, प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है। अब मेमोरी जो है, मेमोरी में दो तरह के डेटा रहते हैं, एक मेमोरी अगर ये दिस इज अ मेमोरी, ये मेमोरी का एड्रेस है, ये टोटल मेमोरी है, ये है एड्रेस और ये है इंस्ट्रक्शन। Program, what do you mean by program? Program is a set of instructions. Program is set of instructions. Now this program is stored in set of instructions. So this is first instruction, this is second instruction, third, fourth, fifth, sixth. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the six set of instructions are stored in the form of program. Now these instructions are stored in the memory, and every memory has got its own address. Okay. So for example, this first instruction is stored in the memory address of 10001, for example. So this is 10011. So like this, every memory has got its own address. Okay. So the function of address bus is to fetch the address data, or to carry the address data. So function of address bus is to, to fetch the address data and carries the address data to different functional blocks. Okay. So this is the working of address bus. Okay. Then second is data bus. Data bus means अब ये एड्रेस बस है 1001, ये जो एड्रेस है ये इसका एड्रेस बस ने कैरी किया, लेकिन ये एड्रेस बस में कौन सा डेटा है, कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ये डेटा कौन कैरी करेगा, ये डेटा कैरी करेगा डेटा बस। तो वो एड्रेस के मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर है वो डेटा को कैरी करने के लिए डेटा बस है। ओके, एड्रेस बस carries the address of a memory, and data bus carries the data stored in the memory. Okay, so this is the basic difference between address bus and data bus. And this is a control bus. So control bus बोला तो it controls the प्रोसेस, मैंने प्रोसेस है नहीं, अब जैसा डेटा समटाइम्स क्या होता है, हमको मेमोरी से रीड करना होता है और समटाइम्स मेमोरी में राइट करना होता है। सो रीड कब रीड करना है, कब राइट करना है, ये जो है ये कंट्रोल बस कंट्रोल करता है। ओके, यानी मेमोरी से डेटा लेना है या मेमोरी में डेटा स्टोर करना है, इसका काम जो है ये कंट्रोल बस है। तो ये बेसिकली रीड एंड राइट, तो रीड एंड राइट ये दो जो काम है ये कंट्रोल बस है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस देयर इन द माइक्रो प्रोसेसर, देन द आंसर इज देयर आर थ्री बसेस, वन इज एड्रेस बस, one is a data bus, and another one is control bus. So function of address bus is to carry the address of the memory location. The function of data bus is to carry the data stored in the memory location, and control bus is to control whether to read the data or write the data. So these are the three types of data buses are there in the
in any microprocessor, not 8085, any microprocessor. Now we know that this 8085 is a 8-bit microprocessor. Now we will understand the working of this 8085 microprocessor. तो इसका वर्किंग हम स्टार्ट, अगर हमको समझना स्टार्ट करना है तो कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से ये एक्चुअली परफॉर्म करना शुरू करता है। ऐसा इसको ऐसा नहीं कि इसका फंक्शन देख लिया, ये क्या करता, फिर ये क्या करता, फिर ये क्या करता, फिर इसके बाद यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर इधर आ गए, ये क्या करता, फिर यहाँ, ऐसा अगर आप समझोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। हम इमेजिन करते हैं कि ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर को एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का सिग्नल मिल गया, तो ये सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहला क्या काम क्या करता है, कहाँ से डेटा लेता है, फिर उसके बाद वो उसको कहाँ भेजता है, फिर वो वहां से डेटा कहाँ जाता है। तो ये जो सीक्वेंशियल डेटा फ्लो है कि एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शनिंग शुरू करने के बाद जो डेटा फ्लो करना है, ओके, तो उसी सीक्वेंस में अगर हम समझते हैं 8085 को तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले इसका अगर फंक्शनिंग शुरू करते बोले तो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि ये फलाना फलाना प्रोग्राम है, ये फलाना फलाना प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये एक्टिवेट होगा। ओके, so we know that 8085 is a 8-bit microprocessor, and here in the bracket of program counter it is written 16-bit. So 8-bit microprocessor is called 8-bit because the main operation of the 8085 microprocessor is to carry the arithmetic and logical unit, and this arithmetic and logical unit register is of 8-bit, and that is why this is called 8-bit microprocessor. But this program counter, this is called program counter, यानी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये पहले पिक्चर में आएगा। ओके, अब इसका काम क्या है? प्रोग्राम काउंटर का जो काम है वो है जैसे कि आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, आपको एंड्रॉइड मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स है, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऐप है, आपको उसमें से व्हाट्सएप पे यूज करना है तो आप क्या करोगे? व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे। अब व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो एक्चुअली बीइंग एन इंजीनियर आप टेक्निकल पर्सन हो, लेमैन के लिए ठीक है कि व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो अंदर में क्या हो रहा है ये उसको पता नहीं, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर यू शुड नो कि इफ यू टैप WhatsApp icon, then what exactly happens in the Android मोबाइल, उसका जो प्रोसेसर है वो क्या काम करता है। अब वहां पे तो बहुत सारे ऐप के आइकन्स है, जो भी आइकन को क्लिक किया वो वाला जो प्रोग्राम है या एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो आइकन रहते हैं ये जो रहते हैं ये वो प्रोग्राम के जो पहला वाला जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो मेमोरी लोकेशन रहता है उसका एड्रेस रहता है। वो जो आइकन रहते हैं ऐप के वो बेसिकली इंडिकेट कि जैसे मेमोरी में जैसे जितनी भी एप्लीकेशंस है, आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ओके, तो अगर आपके मोबाइल में 50 एप्लीकेशंस है तो 50 एप्लीकेशंस के 50 प्रोग्राम्स आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम्स हो गए। इसके अलावा आप जो इमेजेस, आप जो वीडियोस देखते हो, जो जो व्हाट्सएप की वीडियोस है, व्हाट्सएप की इमेजेस है, या आप कैमरा से जो पिक्चर्स निकालते हो वो भी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। ओके, तो मेमोरी में प्रोग्राम भी है, मेमोरी में आपका डेटा भी है। ओके, ये जो वीडियोस है या फोटोज है या आपके पीडीएफ फाइल्स है या वर्ड फाइल्स है, ये क्या है? ये डेटा है। और एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ओके, तो मेमोरी जो है ये ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो मेमोरी के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग भी है, मेमोरी के अंदर में डेटा भी है। ओके,
तो ये जो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने व्हाट्सएप का आइकन को क्लिक किया तो वो इट टेक्स इट टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट्सएप प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली जितने भी एप्लीकेशंस के आइकन्स दिख रहे हैं उस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, वो 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 एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो once you click means once you start executing a program, then the program counter stores the address of the first instruction of that program। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो प्रोग्राम का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस और उसका डेटा ये जो है ये फेच कर लेता है। ओके, और ये फेच करने के बाद ये प्रोग्राम काउंटर हो गया। अब ये फेच करने के बाद यहाँ पे ऐड बफर है। ओके, ऐड बफर एंड ऐड बफर, ये दो जो है ये एक्चुअली इसमें इसमें क्या रहता है, ये प्रोग्राम काउंटर ये रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज अ मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस। ओके, ये 16 बिट रजिस्टर है, दैट मींस 16 बिट डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ओके, अब ये जो है ये 16 बिट का रजिस्टर है। अब ये 16 बिट का रजिस्टर क्या करता है, ये दो पार्ट में वो डेटा को सेपरेट करता है। ओके, पहला जो है ये है एड्रेस बफर, यानी ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है और उसका एड्रेस है, उसका एड्रेस जो है ये एड्रेस बफर A8 to A15 यहाँ पे स्टोर करता है। और ये फर्स्ट एड्रेस के अंदर में जो डेटा है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का डेटा वो स्टोर करता है AD0 to AD7, and this is a 8-bit register and this is also 8-bit register. So total 16-bit register is now divided into 8-bit register and 8-bit register. This 8-bit register stores the address of the first instruction, whereas this 8-bit register stores the data stored in the first instruction. Okay, so in this way they have fetched the address as well as data from the program which is to be executed. Okay, so here complete. So once the data, once the first address and the data fetched, then this is increment and decrement register. So INC, increment and decrement register. तो जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन फैच हो गया डेटा और एड्रेस, तो क्या हमको कहाँ जाना है, हमको दूसरे वाले इंस्ट्रक्शन पे जाना है। क्योंकि आप जो सी प्रोग्रामिंग लिखते हो तो सी प्रोग्रामिंग लिखने के बाद लिखते समय आप पहली लाइन लिखते हो, फिर पांचवी लाइन, फिर दूसरी लाइन, ऐसा लिखते हो क्या? ऐसा नहीं लिखते। आप जो सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखते हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट हो। ओके, तो पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड करने के बाद किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन रीड करना है। हाँ, अगर ये रहता है कि पहला इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद पांचवा इंस्ट्रक्शन रीड करना है तो उसको बताने की जरूरत है कि भैया पहले से पांचवे पे जा, तू दूसरे पे मत जा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहला इंस्ट्रक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको प्रोसेस करना है, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना है, फिर चौथा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना है। तो ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 ये एब्सोल्युटली फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। सो वंस द address of the first instruction and the data of the first instruction is being fetched by the program counter, now it is automatically incremented by 1. Okay, तो एड्रेस जो है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो और उस सेकेंड इंस्ट्रक्शन का डेटा ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। तो ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर्स है जो कि 16 बिट रजिस्टर है, ये क्या करता है कि नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी कर देता है। ओके,
Now we have fetched the address data, we have fetched the data of the first memory location. अब यहाँ से ये जो डेटा है ये कहाँ जाता है, ये यहाँ पे आता है. अब ये जो डेटा है ये 8 बिट रजिस्टर, ये जो ऐड बफर है ये जो है ये 8 बिट रजिस्टर है. ये 8 बिट रजिस्टर जो है 8 बिट डेटा को अभी प्रोसेस करने के लिए रेडी है. ओके, हमने मेमोरी से 8 बिट डेटा लिया, अभी उसको प्रोसेस करना है, तो ये अभी रेडी है. तो यहाँ से ये जो जाता है सबसे पहले IR. अब IR क्या है, ये 8 बिट रजिस्टर है, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. IR बोला तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मींस जो भी आपका आपने प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे प्रोग्राम का जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आगे आ गया. जैसा पहला इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जांपल इंटीजर a, b, c. इंटीजर a, b, c. आपने सी प्रोग्रामिंग सबने पढ़ा हुआ है. तो हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है. इंटीजर है या फ्लोट है या जो कैरेक्टर है जो भी है वो आपको डिक्लेयर करना होता है और वेरिएबल्स के नाम देने होते हैं a, b, c. सो int इंटीजर a, b, c. This is for example your first instruction. That means you are going to use 3 variables in the program a, b, c, and the data type of this a, b, c is integer. Okay, now this has been written as first instruction of the program. अब ये जो है ये इंटीजर a, b, c ये आपको समझता है. कंप्यूटर को या माइक्रो प्रोसेसर को वो नहीं समझता, उसको सिर्फ 0101 की भाषा समझती है. बराबर. तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को रीड करता है जिसमें आपने लिखा है, लेकिन इसको डिकोड करने का काम जो है वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो आईडी है ये करता है. दिस इज आल्सो 8 बिट रजिस्टर. दिस इज आल्सो 8 बिट रजिस्टर. दिस आईडी बोला तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर. So the function of the instruction decoder is to decode the instruction of the first instruction. जो first instruction है उसको decode करने का काम जो है ये instruction decoder जो register है वो करता है. तो इससे क्या है, ये 0 1 1 0 ये जो भी इसको माइक्रो प्रोसेसर को जो लैंग्वेज में समझता है वो लैंग्वेज में जो है ये कन्वर्ट करता है, डिकोड करता है. And once the instruction is decoded in the readable form, then it gives the signal to P and C. Now this P and C is timing and control. Timing and control. Timing and control means जब तक इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड नहीं करता तब तक ये जो बाकी ब्लॉक डायग्राम्स है ये वर्किंग में नहीं आते, क्योंकि भैया क्या करना है हमको पता ही नहीं. तो अननेसेसरी उनको जैसे रिलैक्स करके रखा है, उनको रेस्ट दिया है. अभी उनका काम नहीं है. जब तक इंस्ट्रक्शन डिकोड नहीं होता तब तक ये जो बाकी के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स दिख रहे हैं, ये फंक्शनल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है. तो ये अभी रिलैक्स है, ये रेस्ट कर रहे हैं. बट once the instruction is decoded into the readable form and the instruction is given to timing and control, then this timing and control gives the instructions to all the functional block diagrams of this microprocessor to get ready. Now the data is decoded and get ready for the next operation. So the function of timing and control is to get the signal from instruction decoder register, and once it receives the instruction, once it receives the signal that instruction decoder has finished the decoding process,
Then this timing and control gives the instruction to all the functional block diagram of this microprocessor to get ready for the operation. Okay. So जैसे कि अगर आपके हाथ में मच्छर बैठा है, तो मच्छर बैठा तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में मच्छर बैठा, तो एक्चुअली होता क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम से आपके ब्रेन में जाता है। ब्रेन रिकॉल करता है कि मच्छर बैठने के बाद कौन सी एक्शन ली जाती है। फिर ब्रेन की मेमोरी में स्टोर रहता है कि जब भी मच्छर बैठता है तो हम उसको हाथ से ऐसा मारते हैं। ओके, तो फिर वो मेमोरी से रिकॉल करता है और रिकॉल करने के बाद दूसरे हाथ को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये उठा के अभी ऐसा मारो। ओके, तो ये प्रोसेस होती है, लेकिन आपको वो इतनी जल्दी में पता नहीं चलता है। लेकिन कभी भी जो भी कंट्रोल एक्शन करनी होती है, तो पहले सिग्नल जो है ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन दूसरे हाथ को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर दूसरे हाथ से इंस्ट्रक्शन अगर आता है तो वो ऐसा हम वो मच्छर को मारते हैं या मच्छर को भगाते हैं, जो भी करना है। तो ये सब प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है, जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाता है तब ये टाइमिंग एंड कंट्रोल जो है ये बाकी जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम फंक्शनल ब्लॉक्स है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी हम ये प्रोसेस करने के लिए रेडी है। तो यहाँ से अभी इनको सिग्नल मिल गया कि हमको ये ऑपरेशन करना है। अब इसमें अज्यूम करो कि आपको इसमें एडिशन का ऑपरेशन करना है। आपने एक सी प्रोग्रामिंग लिखा है फॉर एग्जांपल, इसमें आपने करना है 278 प्लस 689, ये दो वेरिएबल का एडिशन करना है फॉर एग्जांपल। आपने सी प्रोग्रामिंग लिखा और इस हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने क्या किया कि डिकोड कर दिया कि हमको ये जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी नंबर में जो भी है 10011111 जो भी है उसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें एडिशन करना है तो एडिशन के लिए भी जो इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड कर दिया। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या करेगा, ये बाकी जो फंक्शनल ब्लॉक्स है इसको रेडी करेगा। अब ये इसमें आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर always stores first data variable। तो यहाँ पे आपका a इक्वल टू 278 है, b इक्वल टू 689 है और c में आपको एड्रेस c में आपको आंसर स्टोर करना है। आपने वेरिएबल जो है a b और c ये डिफाइन किए हैं, इंटीजर a b एंड c। a बोला तो फर्स्ट वेरिएबल 278, b बोला तो 689 एंड c इज इक्वल टू c है वो आंसर है। ओके, यानी c इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए a वेरिएबल लगता है और b वेरिएबल लगता है। तो इसमें से पहला जो वेरिएबल है, ये पहला वेरिएबल हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर रहेगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, इसका जो पहला वाला जो वेरिएबल है वो हमेशा ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है ये इसमें स्टोर रहता है, ये फर्स्ट वेरिएबल। और ये जो है दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर में हमेशा जो सेकंड वाला वेरिएबल है b ये स्टोर रहेगा। So function of temporary register is to store the second variable b, and यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में आएगा। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में बेसिकली जो लॉजिक गेट्स रहते हैं वो लॉजिक गेट्स के हिसाब से प्रोसेसिंग होता है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होगा कि ये दोनों का एडिशन होगा, a प्लस b। ये जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये एक्चुअल ऑपरेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होगा।
अब यहाँ पे ये फ्लैग फ्लिप फ्लॉप किया है, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप। फ्लैग फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है कि these are the status register, status registers। स्टेटस रजिस्टर्स बोला तो जैसा आपने ये एडिशन किया 8 + 9, 8 + 9 इज 17, 17 का ये 7 कैरी 1, तो यहाँ पे क्या है 1 कैरी हो रहा है। 8 + 9 इज 17, 17 का 7 आपने यहाँ लिखा, 1 कैरी किया। या आपने बाइनरी एडिशन या बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी देखा होगा कि एक कैरी करना पड़ता है या 1 बोरो करना पड़ता है। तो ये कैरी या बोरो करने का जो काम है ना, ये फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स करते हैं। यानी जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ऑपरेशन परफॉर्म करते समय जो भी कैरी वाले फंक्शंस है, कैरी या बोरो करने वाले जो फंक्शंस है, वो सारे ये फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स में होते हैं। इसको बोलते हैं स्टेटस रजिस्टर। नाउ ए एंड बी, ये 2 नंबर का एडिशन हो गया। अब इसका जो एड्रेस है, सॉरी इसका जो आंसर है, ये आंसर फिर से ये एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर इज द फर्स्ट वेरिएबल, एंड टेम्परेरी रजिस्टर में जो है ये बी वेरिएबल का वैल्यू रहेगा, और दोनों का जो एडिशन होके आंसर आएगा वो फिर से एक्यूमुलेटर ए में जो आके है स्टोर हो जाएगा। तो जो जो फंक्शनल ब्लॉक्स हमने देखे हैं वो रेड कलर में हो गए। ओके, सो यहाँ पे ये रजिस्टर, 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 ये सबके फंक्शंस हमने समझ लिए। अब यहाँ पे ये कुछ दिया है, दिस इज एक्यूमुलेटर ए, और यहाँ पे है बी सी डी ई एच एल। ये बी सी डी ई एच एल, ये जो है ये क्या है? अब इसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। अब ये जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है? अब फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग होती है, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है। माइक्रो प्रोसेसर में आप सी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग करना है तो उसको असेंबली लैंग्वेज में करना होता है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्रामिंग होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है। वो कोई सी लैंग्वेज या दूसरा कोई जावा में इसमें उसमें नहीं होता है। वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग होता है। तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते समय आपको अगर वेरिएबल्स, जो जो प्रोग्राम है उसको वेरिएबल की जरूरत है। ओके, तो आप ये जो वेरिएबल्स है बी सी डी ई एच एल, जिसको कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स बोलते हैं, और इसका सबका साइज 8 बिट रहता है। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट। तो ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू स्टोर द वेरिएबल्स। तो ये असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्रामर है उनके लिए ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो है ये डेडिकेट किए गए हैं, जहाँ पे वो अपने वेरिएबल्स या अपने इंस्ट्रक्शंस इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, जैसा आप सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग करते समय नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने का कोई लिमिट होता है क्या? कोई लिमिट नहीं होता है। आपको अगर फॉर एग्जांपल 100 वेरिएबल्स चाहिए कोई भी प्रोग्राम के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा करते करते बहुत सारे वेरिएबल चाहिए, 100 वेरिएबल, तो उसका कोई लिमिट है क्या? उसका कोई लिमिट नहीं है। सी प्रोग्रामिंग में आप 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो है 8085, this is an hardware, so there is a limit in which you can declare the variables.
So there are only 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this 8. Only 7, only 7 registers are there. तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सिर्फ 7 ही वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो रहता है उसमें वो जो है वो मेमोरी में स्टोर रहता है, और मेमोरी जो है वो कितनी भी बड़ी रह सकती है। लेकिन ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर में आप ये 7 वेरिएबल से ज्यादा जो है वो वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है इसको जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम ब्लॉक्स जो है वो रेड कलर के हो गए हैं, यानी इसका जो फंक्शन है वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे ये एसटी रजिस्टर है। एसटी रजिस्टर बोला तो स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर यानी स्टैक स्टैक एक कंप्लीट एक्चुअली टॉपिक है। तो स्टैक पॉइंटर बोला तो जैसा कि एक बॉक्स है, वो बॉक्स में आप डिस्क्स डाल रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बिस्किट डाले। तो 5 बिस्किट डालने के बाद अभी अगर हमको पहला वाला बिस्किट निकालना है तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। जब तक आप 5 4 3 2 1 5 4 3 2 ये बिस्किट जब तक नहीं निकालते तब तक आप फर्स्ट बिस्किट नहीं निकाल सकते। तो ये इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट, ये दो अलग अलग टेक्निक्स रहती है। तो ये स्टैक पॉइंटर के हिसाब से, तो यहाँ पे कैसा है कि जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट आउट होगा। तो ये जो स्टैक पॉइंटर्स रहता है, ये स्टैक पॉइंटर्स जैसे आपने बहुत सारे कैलकुलेशंस कर दिए तो स्टैक पॉइंटर डिसाइड करता है कि आंसर पहला कौन सा दिखाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन किया उसका आंसर पहला दिखाने का, या लेटेस्ट वाला जो कैलकुलेशन हुआ है ऑपरेशन हुआ है उसका आंसर पहला दिखाने का, ये डिपेंड करता है ये स्टैक पॉइंटर पे। तो स्टैक पॉइंटर बेसिकली इट स्टोर्स द एड्रेस एंड द डेटा ऑफ द आंसर, इसलिए ये भी जो है दिस इज आल्सो अ 16 बिट रजिस्टर। इसमें स्टैक पॉइंटर में आंसर का डेटा और आंसर का मेमोरी लोकेशन एड्रेस दोनों स्टोर होता है, इसलिए ये दिस इज 16 बिट रजिस्टर। तो ये हो गया। अभी हमारा ये बचा है इंटरप्ट कंट्रोल बचा है और सीरियल आईओ कंट्रोल बचा है। अब इंटरप्ट कंट्रोल जो है इसमें बेसिकली दो पिन होती है, एक इंटरप्ट एक्नॉलेज एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जैसे कि बीच में अगर ये ऑपरेशन करते समय बीच में एक तो कोई लाइन चलेगी, ओके, या फिर प्रिंटर अगर है तो प्रिंटर के अगर पेजेस खत्म हो गए, तो जैसे ही प्रिंटर के पेजेस खत्म हो गए तो एक मैसेज पॉपअप हो जाता है कि नो पेजेस इन द ट्रे। तो ये जो इंटरप्ट है, जो जो भी कारण से प्रोसेस के बीच में अगर कोई इंटरप्ट आ जाता है, तो ये इंटरप्ट एक्नॉलेज और इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये जो है दिस विल टेक केयर ऑफ द इंटरप्ट, एंड वंस द इंटरप्ट इज रिमूव्ड देन द रिमेनिंग प्रोसेस इज कैरी फॉरवर्ड। तो ये बेसिकली ये इंटरप्ट कंट्रोल का काम है कि बीच में अगर कोई भी इंटरप्ट आता है तो ये प्रोसेस हैम्पर नहीं होने देनी। आपने क्या किया, आपने अगर 10 पेज का प्रिंट आउट दिया और ट्रे में 5 ही पेज है, तो 5 पेज प्रिंट होने के बाद पॉपअप मैसेज पॉपअप आएगा कि नो पेजेस इन द ट्रे। नाउ वंस यू लोड द न्यू पेजेस एंड प्रेस ओके, then the remaining 5 pages get printed. Okay, that means there was an interrupt, but once the interrupt is removed, the next process completes according to the program. Okay, so the function of this interrupt control is to request for interrupt and to acknowledge the interrupt. Okay, so ये दो है, this is called interrupt control
and this is serial I/O control. Serial I/O control में serial input data and serial output data. जैसे कि ये 8 बिट डेटा जो है 8 बिट डेटा ये पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन का एग्जांपल है. 8 बिट डेटा यानी 8 बिट डेटा पैरेलली आता है. लेकिन अगर आपको आपका एप्लीकेशन सीरियल इनपुट है बिट बाय एक बिट का डेटा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ये सीरियल आईओ कंट्रोल से आप कर सकते हो. ओके, तो ये यहाँ पे सीरियल आईओ कंट्रोल दिया है एसआईडी एंड एसओडी. So in this way we have complete all the functional block diagram of this architecture of 8085. तो थोड़ा सा summarize कर लेते हैं. सबसे पहले the program start executing from program counter. So program counter is a 16-bit register which actually stores 8-bit register for storing the address and 8-bit data. 8-bit register for storing the data. Okay, so program counter actually points the first instruction and the first address memory location, and the address and the data of the first instruction is stored in add buffer. And once the first address and first instruction is being read by the program counter, the increment and decrement register automatically takes the program counter to the next address. Now the address of the data of the first instruction is being taken to the instruction register. So instruction register reads the instruction, then it gives it to the instruction decoder. So instruction decoder decodes the instruction. And once it decoded the instruction, it gives the signal to timing and control. Timing and control gives the signal to all the functional blocks of this microprocessor is to get ready for the operation. Then accumulator register stores the first variable, the temporary register stores the second variable, and the operation on arithmetic and logical unit carries out according to the instruction, and the address is stored, answer is stored in the accumulator register. The status register or flag flip flops, it basically helps the arithmetic and logical unit for carrying and borrow purpose. The function of interrupt control is to receive, request the interrupt and acknowledge the interrupt. And this serial I/O control actually takes the input data in serial form and output data in serial form. Now these general purpose registers, there are 7 general purpose registers: A, B, C, D, L. So these 7 general purpose registers is for the programmer of this microprocessor. This general purpose registers can be used by the programmer to store the variable. Stack pointer is basically decides which answer would be displayed or which answer to be sent out and which answer to be sent later. Okay, so this is the function of this stack pointer. So in this way we have finished with the architecture of 8085 microprocessor. So I hope that you have understood 8085 architecture. Once you understand the function of all the functional block diagrams, then no need to remember this diagram. Once you understand the function of all the functional block diagram, functional blocks, then you need not to remember or need not to mug up the diagram. You yourself can remember the functional blocks and you can join those functional blocks in logical manner and your architecture is ready. Okay. So that's it from my side. If you have any question, then you can ask. So कोई question है आपके इसमें? No, sir.
So I think we should stop over here. एक ये है कि जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है उसका राइटअप सबमिट कर दो। इसकी लिंक मैंने मूडल पे क्रिएट करके रखी है, तो आप अपना राइटअप जो है वहां पे सबमिट कर दो। ओके, लास्ट सैटरडे और लास्ट फ्राइडे को हमने एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 परफॉर्म किया था और उसका सबमिशन का डेट मैंने ये सैटरडे रखा था, तो आज उसका लास्ट डे है। तो आप जो है एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 का राइटअप जो है वो वहां पे सबमिट कर दो। So thank you very much for attending this class. Uh, thank you very much. Have a nice day. Have a nice weekend. Thank you. You can leave. Thank you, sir. Thank you.